صدائے حق نیوز، حق و صداقت کی بے باک آواز۔ یہ حضرت مرکز میں جو ہوا اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مرکز میں کوئی بات ایسی نہیں ہوئی جس کو اچھالا جائے، یہ تو فرقہ پرست طاقت کی طرف سے بات کا بتنگڑ بنایا جا رہا ہے۔ مرکز والوں نے بار بار رابطہ قائم کیا اور یہ چاہا کہ کسی طرح ان لوگوں کو پرمٹ مل جائے تو یہ اپنی جگہوں کے اوپر پہنچ جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ پرائم منسٹر نے جب لاک ڈاؤن کیا تو یہ کہہ دیا کہ جو جہاں ہیں ان کو وہیں رہنا چاہیے۔ ان لوگوں نے اپنے مرکز کے اندر رکھا تو مرکز کے اندر تو ہمیشہ ہزاروں آدمی رہتے ہیں، جس کے اندر غیر ملکی بھی تھے اور ملکی لوگ بھی تھے۔ اب اس کے بعد اس چیز کا پھیل جانا ہے، یہ تو ایک عجیب و غریب سی چیز ہے۔ آپ اگر ان لوگوں کو دیکھیں گے جو لاکھوں کے ایک بھیڑ چلی جا رہی ہے، اپنی اپنی جگہوں پر پہنچیں گے اور دیکھیں گے کہ ان کے اندر ہم شخص کو ٹیسٹ کریں گے تو کتنے لوگ ہوں گے جن کے اندر کرونا وائرس پکڑے جائیں گے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ ہوا ہے۔ تو مطلب آپ مانتے ہیں کہ مرکز نے حضرت کوئی کوتاہی نہیں کی؟ نہیں، مرکز نے کوئی کوتاہی نہیں کی۔ مرکز تو بار بار اطلاع دیتا رہا اور یہ چاہتا رہا کہ اجازت ملے تو ان لوگوں کو اپنی جگہوں پر پہنچایا جائے۔ یہ کوئی مرکز کی غلطی نہیں ہے۔ اگر نہیں دیا گیا تو جن لوگوں کو اجازت دینی چاہیے تھی ان کی غلطی کہ انہوں نے کیوں نہیں اجازت دی۔ تو آپ کیا مانتے ہیں کہ ایک سازش کے تحت یہ سب کچھ کیا گیا؟ نہیں، میں سازش ان حالات میں نہیں کہتا ہوں۔ ان حالات میں ہر شخص پریشان ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جتنی توجہ دینی چاہیے تھی اتنی توجہ نہیں دی گئی۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اسرائیل اور ملکوں کے پھنسے ہوئے لوگ یہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں تھے۔ میری معلومات یہ ہے کہ گورنمنٹ سے انہوں نے کہا اور گورنمنٹ نے ایئر انڈیا کی فلائٹوں کا انتظام کیا ہے لاک ڈاؤن کے بعد، اور ان کو ان کے ملکوں کے اندر پہنچایا گیا، لیکن مسلمانوں کو نہیں کیا گیا، نہیں پہنچایا گیا۔ اس کی وجہ سے اب یہ ثابت کرنا کہ یہ بتانا دنیا کو کہ گویا کہ یہ آفت پھیلی ہی ہے تبلیغی جماعت والوں کی وجہ سے، یہ تو انتہائی ظلم اور بےہودگی کی بات ہے۔ اٹلی میں کہاں سے پھیل گئی؟ چین میں کہاں سے پھیل گئی؟ وہاں کون سی تبلیغی جماعتیں کام کر رہی ہیں؟ خدا کا خوف نہیں ہے لوگوں کے دلوں کے اندر، اس لیے اس طرح کی باتیں کریں۔ لوگوں سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ میں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس مرض کا کوئی علاج اب تک نہیں دریافت ہو سکا، اس لیے احتیاطی تدابیر میں سب سے زیادہ مؤثر تدبیر یہی ہے کہ لوگ کسی جگہ اکٹھے نہ ہوں۔ میں مسلمانوں سے بھی کہوں گا، ہندوؤں سے بھی کہوں گا کہ اس طرح کے واقعات نہ ہونے چاہیے۔ جو کچھ ہوا اجودھیا کے اندر اور مہنت لوگ جمع ہوئے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی لاک ڈاؤن کے خلاف تھا۔ جو ہوا کرناٹک کے اندر کہ چیف منسٹر شادی میں جا کر گئے کہ MLC کے یہاں شریک ہوئے، میں سمجھتا ہوں وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر ان کے خلاف وارنٹ ہے تو کیا جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے کہ ان کے خلاف بھی وارنٹ کرے؟ لیکن یہ ہے کہ ان بیچاروں کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، اس لیے ان کے خلاف وارنٹ چلا گیا، ان کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ آپ کے سامنے دہلی میں تبلیغی مرکز میں پیش آنے والے واقعے سے متعلق چند باتیں عرض کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ تبلیغی کام کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے تبلیغ کا متعدد موقعوں پر ذکر فرمایا ہے، احادیث مبارکہ بھری ہوئی ہیں۔ انہی تمام نصوص کو بنیاد بنا کر ہمارے اکابر کھڑے ہوئے اور انہوں نے جماعت کی تشکیل دی۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ تم میں ایک امت ہونا چاہیے جس کا کام اور جس کا وظیفہ یہی ہونا چاہیے کہ وہ اچھی باتوں کی طرف لوگوں کو بلائے، اچھی باتوں کا حکم دے اور بری باتوں سے روکے۔ یہ ہے بنیاد تبلیغ کی۔ اس بنیاد کو اگر آپ تلاش کیجئے تو پورے عالم میں جہاں جہاں انسان بستے ہیں وہاں وہاں یہ دعوت پہنچی ہے اور پہنچ رہی ہے اور آئندہ پہنچتی رہے گی۔ لہذا تبلیغ کوئی نئی چیز نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ اس کا رد عمل جو کچھ بھی ہوا ہے مرکز میں، اس کا رد عمل جو سامنے آ رہا ہے، اس کو دیکھ کر بچوں کو بھی ہنسی آ رہی ہے۔ یعنی ایک اجتماع ہوا، اچانک حکومت کا اعلان ہوا بند کرو، جو جہاں ہو اسی جگہ رک جائے۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی آدمی سائیکل پر بیٹھا سفر کر رہا ہے، ابھی اس کا گھر بہت دور ہے، لیکن اس کو چاہیے کہ وہ حکم حاکم کو مانے اور مان کر کے فوراً رک جائے، چنانچہ ایسے ہی ہوا بھی ہوگا۔ تو مرکز کی اطلاعات آپ کے پاس پہنچتی رہیں اور اس کے باوجود کوئی سانس ڈکار نہیں لی گئی۔ اب جب وہاں موجود لوگ کہیں جا نہیں سکتے، ان کو جانے نہیں دیا جا رہا ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ آج کل ہماری مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں مگر نماز نہیں ہو رہی۔ جمعے کی نماز ہم لوگ مسجد میں نہ پڑھ کر ظہر کی نماز جو جمعے کے بدلے میں پڑھتے ہیں، سارے ہندوستان میں ایسا ہو رہا ہے۔ تو ہم لوگ یعنی مسلمان پوری طرح احتیاط برت رہے ہیں اور اکابر علماء اکرام کے مشوروں پر اور فرمودات پر پوری طرح عمل کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود یہ کہنا کہ تبلیغی جماعت کی وجہ سے کرونا پھیلا ہے اور فلاں کی وجہ سے کرونا پھیلا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا۔ اور یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ صاحب یہ جو ہو رہا ہے یہ سب کچھ مسلمانوں کے کھاتے میں لکھ دیا جائے۔ اللہ کا غضب ہے، اللہ کا بہت بڑا غصہ ہے ایسے لوگوں پر جو بات کا بتنگڑ بنائیں اور الٹی پلٹی باتیں کریں۔ آپ سوچئے ذرا سا کہ یہ دنیا میں جو کرونا پھیل رہا ہے یہ سب تبلیغی جماعت کا آوردہ ہے، تبلیغی جماعت اسے لے کر کے آئی ہے۔ یہ فالتو باتیں ہیں، میڈیا اس میں ملوث ہے اور میڈیا کے اوپر لگام نہ کسنے کی بنیاد پر دہلی حکومت بھی اس کے مجرموں کے کٹہرے میں کھڑی ہوئی، اور اس کو چاہیے کہ ایسے میڈیا کے اوپر پابندی لگائیں۔ FIR ان کے بارے میں ہونا چاہیے جو میڈیا کے لوگ طوفان بدتمیزی کر رہے ہیں، اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ ایسا ہوا ویسا ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ جو کچھ ہوا ہے وہ سارے افسران کے علم میں لا کر ہوا ہے۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں ہندوستان میں کسی ایک طبقے کو اپنی انگلی سے اشارہ کر کے مجرم قرار دینا یہ ہندوستان کے مزاج کے خلاف ہے، یہ ہندوستان کے تہذیب کے خلاف ہے، یہ ہندوستان کے دستور کے خلاف ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا ملک جس کا مزاج، جس کا قوام جمہوریت ہے، آزادی کے بعد کیا ہوا؟ سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات پر متفق ہوئے ہمارے اکابر کے محنتوں کے نتیجے میں کہ ملک کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، یہاں جو مذہب اپنے طریقے کے مطابق اپنی عبادت کرے گا حکومت اس کا معاون بنے گی۔ ہاں بس یہ ہے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس سے کسی کی مذمت ہو، کسی کی برائی ہو۔ اسی لیے ہم لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی اپنا کام کرو، دوسروں کی مذمت مت کرو، دوسروں کی برائی نہ کرو۔ تو میرے خیال میں تبلیغ کے مرکز میں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ایک سوچی سمجھی سازش کا نتیجہ ہے۔ اب ہمارا اور آپ کا امتحان یہ ہے کہ ہم پوری طرح حکومت کے جو احکام ہیں، انتظامیہ کی جو پالیسی ہے اس کو اپنائیں، اور ہرگز نہ باہر مجمع لگائیں نہ اندر مجمع لگائیں، نہ مسجدوں میں جائیں، جس طرح نمازیں ہو رہی ہیں مسجد میں اسی طرح ہوتی رہے، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ یہ وقت ٹال دے۔ اس وقت انسانیت کی بقا کا مسئلہ ہے، اس وقت انسان کے باقی رہنے کا مسئلہ ہے، اس وقت الزام تراشی کا مسئلہ نہیں ہے۔ اتنی فرصت ہو گئی آپ کو کہ آپ الزام تراشی کریں، آپ یہ بھول گئے کہ کرونا سے ملکوں کی آبادیاں جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہیں، پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، مگر آپ اس چکر میں ہیں کہ کسی طریقے سے مسلمان پکڑ لیے جائیں۔ آپ کے پاس پاسپورٹ ہے؟ جی ہے پاسپورٹ۔ کہاں سے آئے؟ وہ کہنے والا کہہ رہا ہے بھیا آپ نے ہمیں ویزا دیا ہے تو ہم آپ کے یہاں آئے ہیں، آپ کا جہاز بند ہو گیا ہے، اب ہم کیسے واپس جائیں؟ فوراً پاسپورٹ پھاڑ کے پھیر دیا۔ یہ لکھنؤ کا واقعہ۔ اس طرح کی اور بہت ساری باتیں کہ آپ مرکز ڈھونڈ رہے ہیں، آپ جماعت والوں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اللہ کے بندو ہوش کا علاج کرو، ہوش کا علاج کرو۔ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے انسانیت کے لیے ہونا چاہیے، انسانوں کی بقا کے لیے ہونا چاہیے۔ ہماری پرانی آواز ہے کہ یہاں
हिंदुओं को न देखो, यहाँ मुसलमानों को न देखो, यहाँ सिखों को न देखो, यहाँ ईसाइयों को न देखो, यहाँ इंसान को देखो और इंसान को देख करके उसकी खिदमत करो। इस खिदमत के लिए कितने लोग आगे बढ़ रहे हैं। मुल्क के ऊपर तो सबका दावा है, मुल्क पर सब लोग राज करना चाहते हैं, लेकिन मुल्क की बका की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। मैं समझता ये हूँ कि ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं और इन बातों से हमारा मुल्क बदनाम होगा, हमारी तहजीब रुसवा होगी, हमारा दस्तूर जो है वो बदनामी का शिकार होगा। लिहाजा हमको इससे बचना चाहिए और तमाम इंसानों का मुतालबा है कि दिल्ली हुकूमत कदगन लगाए मीडिया के ऊपर कि ये गलत सलत बातें जो उड़ाई जा रही हैं, इनका इस वक्त कोई वक्त नहीं है और कभी कोई वक्त नहीं है। यहाँ सब लोग एक सतह पर हैं, सबकी खिदमत हमारी खिदमत है, सबकी खिदमत दीन की खिदमत है। जो लोग गुरुद्वारे में हैं वो अपना काम करें, जो मस्जिदों में हैं वो अपना काम करें, जो मंदिरों में हैं वो अपना काम करें, जो इमाम बाड़ों में हैं वो अपना काम करें। लिहाजा सब लोग अपने अपने मज़हब के मुताबिक, अपने अपने अक़ीदे के मुताबिक दीन का काम करते रहें और अपने मसलक के मुताबिक अपना काम करते रहें। यहाँ कोई भेदभाव मुल्की एतबार से नहीं। अगर इख्तिलाफ़ात हैं, यकीनन हैं इख्तिलाफ़ात, तो उन इख्तिलाफ़ात का ये मौका नहीं है। इस वक्त बक़ाए इंसानियत का मसला है और हमको बरार आलम बक़ाए आलम की फ़िक्र करना चाहिए और जहाँ जो मदद हो सके, जिससे भी हो सके, हम वही पुरानी बात आपसे कहते हैं जो हमारे बुज़ुर्गों ने भी कही है और हम भी कह रहे हैं कि भाई देखो, कोई भूखा न सोए रात में, जो भी सोए वो खाना खा करके सोए, कोई भूखा न रहे। ये अगर वजीफ़ा हम अपना लें तो इंशाअल्लाह हमें सुकून भी मिलेगा और हम दुआ करते हैं कि जो लोग जुल्म का शिकार हैं, अल्लाह पाक उनको सुकून अता फरमाए और ये वक्त आसानी के साथ गुजार दे और अल्लाह पाक उन लोगों को जो लोग परेशान हाल हैं उन्हें सब्र की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और जो ज़ालिम लोग हैं उनको अपने जुल्म से बाज आने की तौफ़ीक़ नसीब हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत दिनों से जब से ये कोरोना वायरस का माहौल चला है और वहशतें फैली हैं, अल्लाह ताला इस मर्ज़ से हम सब की और पूरे भारतवासी की और पूरी दुनिया की इंसानियत को अल्लाह राहत अता फ़रमाए, हिफाजत फ़रमाए। लेकिन ऐसा लग रहा था कि भारत में जब से कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ लड़ाई शुरू हुई और मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब के ऐलान के बाद भारत सरकार के साथ सारे लोग हो गए, मुसलमान भाई, हिंदू भाई, सारे लोग हो गए। उसके बाद एक शांति सा लगा कि भारत एक शांति की तरफ जा रहा है, हम सब भाई बनकर इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं और पिछले 10-15 दिनों से कोई धर्म खतरे में नहीं आया, कोई धर्म खतरे में नहीं आया, कोई किसी को पाकिस्तान नहीं भेज रहा था सुबह उठकर, कोई उल्टियां नहीं कर रहा था। लेकिन अचानक ऐसा लगता है जैसे कोरोना वायरस की दवा मिल गई है हिंदू मुसलमान, वो मीडिया, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आप लोग भी मीडिया के लोग हैं, लेकिन चंद वो मीडिया जिनके पेट में मड़ोर हो रही थी, रातों की नींद खराब हो रही थी कि उनकी दुकानें कैसे चलेंगी, क्योंकि वो नफरतों की बुनियाद पर ही अपनी दुकान चलाया करते थे। वो नफरत बोला करते थे, नफरत खाते हैं, नफरत पीते हैं, नफरत लेते हैं, नफरतों पे सोते हैं। उनको मिल गया दिल्ली मरकज, निजामुद्दीन, तबलीगी जमात, न जाने क्या क्या कह दिया। मैं पूछता हूं कि भाई होश के नाखून लो। इटली में कौन सी तबलीगी जमात गई थी? चाइना के हुआन में कौन सी तबलीगी जमात थी? अमेरिका परेशान है, वहां कौन सी तबलीगी जमात थी? भारत में भी पंजाब में जो कोरोना वायरस आया, बंगाल में बाहर से ब्रिटेन से लोग आए, लंदन से लोग आए, क्वारंटाइन में भेजे गए। देखिए, तबलीगी जमात दुनिया की वाहिद एक ऐसी मुसलमानों की जमात है जो सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करती है। सबसे ज्यादा मैं बता दूं आपको, इनके जब इज्तिमात होते हैं तबलीगी जमात के, तो 20 लाख 25 लाख तो मामूली बात है लोगों का जमा होना। 50-50 लाख लोग जमा होते हैं, ट्रैफिक का मसला खड़ा नहीं होता, लॉ एंड ऑर्डर का मसला खड़ा नहीं होता। उस इलाके के पुलिस कांस्टेबल से लेकर पुलिस कमिश्नर तक आराम से सांस लेते हैं। मैंने इज्तिमात अटेंड किए हैं, बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार साहब के साथ मैंने, वो अपने साथ मुझे लेकर गए बिहार के इज्तिमा में, उनको पूरी मैंने तबलीगी जमात के बारे में बताया ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को। पूर्णिया में 25 लाख का मजमा था, वो हैरान हो गए। नीतीश कुमार साहब मुझसे कहने लगे कि मैंने इतना वेल डिसिप्लिन जमात दुनिया में नहीं देखा। मैंने खुद उनको एक्सप्लेन किया था। आज ये चंद मीडिया वालों को लग रहा है और एक बिके हुए शख्स वसीम रिजवी को लग रहा है कि दुनिया की सबसे खतरनाक जमात है। मुझे अफसोस है, तबलीगी जमात
जंगल में किसी चंबल की घाटी में नहीं है, ये दिल्ली के सीने पे बैठा हुआ है और दिल्ली हमारे भारत का दिल है। और यहां 1000, 2000, 9000, 10,000 लोग तो ये तो रोजमर्रा की कॉमन चीज है। वो पूरी दुनिया से लोग जमा होते हैं क्योंकि वो शांति का उपदेश देते हैं। तबलीगी जमात ने अगर कभी गलती की होती तो 100 ईयर्स की उसकी इतिहास है, निकालिए, खंगालिए उसकी तारीख को। हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जनाब अजीत डोभाल साहब कितने बड़े इंसान हैं, कितने बड़े ऑफिसर हैं, हम सब जानते हैं। वो अभी चंद दिनों पहले मरकज निजामुद्दीन तशरीफ ले गए। अगर मरकज निजामुद्दीन दागी इलाका होता तो क्या हमारे अजीत डोभाल जी कभी जाते? अगर मरकज निजामुद्दीन में गलत लोग होते, क्रिमिनल लोग होते, आतंकवाद लोग होते, तो क्या जनाब अजीत डोभाल साहब कभी तशरीफ ले जाते? अजीत डोभाल जी जानते हैं, अजीत डोभाल साहब जानते हैं कि वहां शरीफ लोग रहते हैं, ईमान की तरफ बुलाने वाले, दीन की तरफ बुलाने वाले, सच्चाइयों की तरफ बुलाने वाले, ईमानदारी की तरफ बुलाने वाले। तबलीगी जमात दुनिया की वाहिद ऐसी जमात है जो गली गली घूम के चाय की दुकानों से, अड्डों से, क्लब से, कैरम बोर्ड से, ताश के पत्तों से, गांजा पीने वाले, चरस पीने वाले भाई कहकर, प्यारे कहकर, बेटे कहकर, चेहरे को चूम कर उनको मोहब्बत से बुला के मस्जिद की तरफ लाती कि देखो सच बोलो, ईमानदारी से चलो, बेईमानी मत करो, मिलावट मत करो। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन अच्छे और बुरे लोगों की वजह से आप किसी जमात को दागी नहीं कह सकते हैं। तबलीगी जमात दुनिया की एक साफ सुथरी जमात है। हां, मुझ जैसा इंसान गंदा हो सकता है, हां मुझसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन मरकज में जो लोग जमा हुए 2500-3000 हजार एक मामूली बात है वहां पे जमा होना। लेकिन इस बात को मत भूलिए कि 2500-3000 हजार लोग जब जमा हुए थे उस वक्त भारत में लॉकडाउन नहीं था। उस वक्त कोरोना वायरस दुनिया में आ रही थी, मगर भारत सरकार ने कोई गाइडलाइन नहीं दिया था, वहां मशवरे चल रहे थे। लॉकडाउन आपने स्टार्ट किया, 2500 में 1500 लोग जा चुके थे, 1000 लोग अटक गए। मैं आपसे पूछता हूं, भारत के जनाब वजीर आजम साहब ने लॉकडाउन अचानक किया था, कोई टाइम देकर नहीं किया था। उन्होंने क्या ऐलान फरमाया कि जो जहां है वहीं ठहर जाएं। मैं कहता हूं जो लोग निजामुद्दीन में थे उनको क्या पार्कों में जाकर टहलना चाहिए था? उनको कहां जाना चाहिए था? वो वहीं ठहर गए, भारत के प्रधानमंत्री के आदेश का सम्मान करते हुए वहीं ठहर गए। अब हजरत निजामुद्दीन, मरकज के बुजुर्गों ने, जिम्मेदारों ने, हजरत जी ने पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को लिख कर दिया कि हमारे पास 1000 लोग मौजूद हैं, इनको भेजने का इंतजाम कीजिए। देखिए, जब आदमी फंस जाता है ना, ये लोग कहते हैं ना छुपे हुए हैं, इनकी मानसिकता गंदी है। वैष्णो देवी के मंदिर में अगर लोग फंस जाए श्रद्धालु, तो हम कभी छुपे हुए का शब्द का प्रयोग नहीं करते, हम कहते फंसे हुए। फंसने और छुपने में फर्क होता है। छुपते हैं चोर और डकैत। इसीलिए मैंने कहा कि निजामुद्दीन मरकज चंबल की घाटी में नहीं है, दिल्ली में है, वहां लोग छुपे नहीं, फंसे हैं। जब लोग फंस जाते हैं तो उनको रेस्क्यू करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, आर्मी की होती है, फौज की होती है। जब 370 खत्म करना था कश्मीर में, तो वहां जितने दर्शन करने के लिए श्रद्धालु गए थे उनको हमारी आर्मी ने रेस्क्यू करके निकाला और बाहिफाजत लाया, किसी को चोट नहीं लगी। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि सारी इंसानियत महफूज रही। दिल्ली निजामुद्दीन के मरकज ने देखिए, निजामुद्दीन जो बंगले वाली मस्जिद है, जो तबलीगी जमात का मरकज है, उसके चंद कदम फासले पर पुलिस स्टेशन है। पुलिस को सब कुछ मालूम है। अगर पुलिस कहती हमको नहीं मालूम है, तब तो सरकार को सोचना चाहिए कि वो क्या कर रही है। पुलिस इंटेलिजेंस के बंदे वहां पे हमेशा घूमते रहते हैं। आपने जब लॉकडाउन किया, हमने आपके फरमान को माना है, हम सरकार के साथ हैं, हम भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। दारुल उलूम देवबंद ने, ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड ने, इमारत शरिया बिहार ने, हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी साहब दामत बरकातुहुम ने, जमात इस्लामी ने, जमीयतुल उलमा हिंद ने, मिल्ली काउंसिल ने, मुशावरत ने, देवबंदी ने, बरेलवी ने, अहले हदीस ने, शिया ने, सब ने ऐलान किया कि हम लॉकडाउन को मानेंगे। उसी ऐलान की बरकत है कि आज मस्जिद में बाहर से नमाज पढ़ने नहीं जा रहे, मैं अपने घर पे नमाज पढ़ रहा हूं। 2-3 आदमी, मौजिन साहब, इमाम साहब मस्जिद को आबाद रखे हुए। अगर हम नहीं मान रहे हैं तो कैसे चल रहा है? लेकिन जिस तरह से कुछ लोगों ने, स्पेशली हमारे वेस्ट बंगाल की महिला प्रकोष्ठ, विमेंस विंग की प्रेसिडेंट मेरी बहन लॉकेट चटर्जी साहिबा, जो हुगली से ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और बीजेपी की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा है, उन्होंने जिस तरह के बयानात दिए, मुझे आश्चर्य लगता है कि आप क्या करना चाहते हैं इसको। इस संकट की घड़ी में भी आपको राजनीति सूझ रही है, इस संकट की घड़ी में भी आप राजनीति के व्यापारी बने हुए हैं, आप नफरतें फैला रही हैं। नहीं, ऐसी बात न करें। सीखें माननीय प्रधानमंत्री जी से कैसे बात की जा सकती है। सीखें हमारे बंगाल के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता दीदी साहिबा से कि वो कैसे सबको लेकर चल रही हैं। आपने निजामुद्दीन पे बंगले वाली मस्जिद में फंसे हुए लोगों को आपने क्या क्या कह दिया।
मैं पूछता हूं, लॉकडाउन के बाद 2-2.5 लाख लोग दिल्ली के आनंद विहार बस स्टैंड पे जो मजदूर फंस गए थे, उनका टेस्ट करवाया आपने? जरा उनका भी टेस्ट करवाइए, फिर पता चल जाएगा कितने इफेक्टिव लोग हैं। आपके पास, हमारे पास कोई साधन नहीं, हमारे मजदूर फंस गए। लोग 400-400 किलोमीटर अपनी फैमिली को, अपने 20 बच्चों को गोद और कंधे पे लेकर देश में चल रहे हैं। आपने 4-5 दिन का वक्त दिया होता, वार्निंग दी होती, उसके बाद कोई नहीं जाता, आप उसे कल्पित समझ सकते हैं। दिल्ली की सरकार ने बहुत जल्दी में एफआईआर किया। मैं कहता हूं आनंद विहार बस स्टैंड में जो लोग अटक गए हैं, 2.5-3 लाख मजदूर जो नजर आ रहे हैं, उनके एक जगह जमा, कितनी दूरी है जरा बताइए एक आदमी पे, कितनी दूरी है? वो लोग क्या अमृत पी हुए, गंगा जल पी कर आए कि उनको कोरोना वायरस नहीं हो सकता? उसके खिलाफ किस पर एफआईआर होनी चाहिए? ये माननीय मुख्यमंत्री जनाब अरविंद केजरीवाल साहब, भारत सरकार और जो लोग एंकर उछल रहे हैं, मैं उन भाइयों से पूछता हूं कि आनंद विहार बस स्टैंड में जो लाखों मजदूर एक जगह जमा हो गए, उनके इस जमावड़े के खिलाफ किस पर एफआईआर होनी चाहिए? है किसी पर एफआईआर करके दिखाइए। ये वक्त एफआईआर करने का है, ये वक्त मोहब्बत से एक दूसरे के काम आने का है, एक दूसरे के काम आने का। कितने लोग भूखे तड़प रहे, भूख से तड़प रहे, खाना बांटा जा रहा है, लेकिन बदनाम करने के लिए एक मौका चाहिए था। सब पीछे पड़ गए कि अब जो हो रहा है वो निजामुद्दीन से हो रहा है, जो हो रहा है सब तबलीगी जमात से हो रहा है। नफरत के सौदागरों को मैं वार्निंग दे रहा हूं कि यह भारत बहुत महान देश है। पहले तो कोरोना वायरस को कुचलेगा, उसके बाद भारत के सारे धर्म के लोग मिलकर नफरत के वायरस को पांव तले से कुचलेंगे इंशाअल्लाह। हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सिख भाई, पारसी भाई, क्रिश्चियन भाई, सब मिलकर हम लोगों की जो अगली लड़ाई होगी वो भारत में नफरत वायरस के खिलाफ होगी। वसीम रिजवी नफरत वायरस क्रिएटर है, वो नफरत के वायरस तैयार करता है। लेकिन वसीम रिजवी, याद रखो, तुम 1000 तलवे चाट लो, एक दिन तुम्हें उस तलवे में जहर चाटना पड़ेगा। तुम इज्जत नहीं पा सकते, तुम्हें अल्लाह ने इज्जत नहीं रखी है। आज हमारे शिया भाई तुमसे नफरत करते हैं। महामहिम केरला के गवर्नर, वो तो महामहिम है, वो तो राज्यपाल हैं। मैं तो उनके खिलाफ कुछ नहीं कह सकता, लेकिन समझ में नहीं आता कि राज्यपाल जी के जबान में इतनी खुजली क्यों हो रही है कि जब मौका मिलता है मुसलमानों को डंक मारने का मौका नहीं गंवाते। अरे आप इससे आगे नहीं जा सकते सरकार, जो आपको मिला है उसी में आप इंजॉय कीजिए। तबलीगी जमात दुनिया की अमन पसंद जमात है, इख्तलाफात अपनी जगह पर है, लेकिन यह वक्त ऐसा नहीं है कि हम मजहब और धर्म और लोगों को लेकर लड़ाइयां छेड़ दें। मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे बिना ब्रेक की गाड़ी में लोग चढ़े हुए हैं, ब्रेक ही नहीं, एक्सीलेटर दबाए चले जा रहे हैं। अरे कुछ अपनी फिक्र करो, कहां गिरोगे जाके? जमात तो ठीक है, संकट से निकल जाएगी, हमारा देश भी संकट से निकल जाएगा। भारत हमारा बड़ा महान है, बड़ी दुआएं हो रही है। अल्लाह ताला भारत और भारतीयों की और पूरी दुनिया की इंसानियत की हिफाजत फरमाए। मैं तो इटली के इंसानों के लिए भी दुआ कर रहा हूं, क्यों नहीं करूंगा। हमारे देश में किसी भाई बहन, चाहे वो किसी भी धर्म और जात के रहें, उनको अगर भूख लगी और हमारे घर में खाना है तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आदेश है कि मैं अपने पड़ोसी को पहले खाना पहुंचाऊं, और इंशाअल्लाह हम सब करेंगे। मैं सारे मुसलमान भाई और हिंदू भाइयों से कहूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर को मानते हुए, हेल्थ डिपार्टमेंट्स के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए मानवता के काम को जारी रखें। उसे रोकने की जरूरत नहीं है। नफरतें फैलाने वालों, तुम्हारी हार होगी, भारत जीतेगा, भारत की मानवता जीतेगी। सर ये बताएं, 23 को शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश में सीएम का शपथ लिया, ये भी आपके हिसाब से गलत है? अब जाहिर सी बात है, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, बड़े लोगों पे कैसे तबसरा कर सकता हूं। काश 200-250 लोग जमा थे। नहीं, माननीय उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जनाब योगी जी लॉकडाउन के दूसरे दिन 25 तारीख को, 23 तारीख तक संसद भी चला। हाँ, और उसमें कुछ ऐसे लोग थे जो कनिका कपूर गायक की पार्टी में, जिसको कोरोना पॉजिटिव, उसमें भी नहीं, वो असल में आप लोग गलत समझ रहे हैं। वो क्या नाम था? कनिका कपूर। हाँ, कनिका कपूर जी चिल्ला लगाने आई थी भारत में। जी, तो चिल्ला लगाने आई थी और इस्लाम समझाने के लिए योगी जी के पास गई थी। वो कनिका कपूर वायरस लेकर आए तो साहब वो अमृत है, वो अमृत है, वो गंगा जल है, उस पे कभी कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। अरे भाई, कोई भी हो, जान सबको प्यारी है, जान सबको प्यारी। तमाशा मत करो, खेल मत खेलो। देखो ये वायरस हार जाएगी, नफरत के वक्त कट जाएंगे, देश और मानवता इंशाअल्लाह जिंदा रहेगी। हम सब फिर मिलेंगे, फिर मोहब्बत से बैठेंगे। लेकिन कोरोना वायरस तो आज आया, कल चला जाएगा। नफरत की वायरस से हमेशा हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस वायरस ने भारत के टुकड़े करवाए हैं और यह वायरस आज भारत के लिए सबसे बड़ी संकट खड़ी कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। जमात के लोगों पर जो लोग जो है बेजा तनकीद कर रहे हैं, मीडिया ट्रायल हो रहा है, मीडिया का एक बड़ा तबका जो जमात को जो है एक दहशतगर्द और सुसाइड बम्बर तक उससे उनको ताबीर कर रहा है, आप क्या कहें? उनका एक ही इलाज है, 3 दिन के लिए वो जमात में निकल जाए, सिर्फ 3 दिन।
इंशाल्लाह पूरी जमात समझ में आ जाएगी। 3 दिन जब अपना खाना वाना बोरिया बिस्तर लेके चलेंगे और किसी मस्जिद में ठहरेंगे इंशाल्लाह, तो दिमाग में ठिकाने आ जाएगा, दिल भी ठिकाने आ जाएगा। अल्लाह सही समझ दे। भाई बिना ब्रेक के गाड़ी में मत चलो, मौका मिला है। ठीक है, इख्तलाफ है, जमात से किसी को इख्तलाफ हो सकता है, हमसे किसी को इख्तलाफ हो सकता है, आपसे मुझे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये वक्त अगर इख्तलाफ निकालने का है तो मैं इतना ही कहूँगा, कफन के सौदागर शहर में मुर्दे ढूंढ रहे हैं, शहर में मुर्दे ढूंढ रहे हैं। इनका बार बार कहना है कि जब दिल्ली में 144 लगाया तो फिर तबलीगी जमात के लोग कैसे इस तरह का प्रोग्राम का आयोजन कर सकते? मेरा ये कहना है कि थाना क्या कर रही थी बगल में। मेरा ये कहना है कि दिल्ली जैसे जो भारत का दिल है, वहां की एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही थी? सबको खड़ा कीजिए ना कटहरे में। ये तो जांच का विषय है। आपने जांच से पहले ही मीडिया ट्रायल स्टार्ट कर दिया। इस देश में कोर्ट की कोई जरूरत नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की कोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। अब जो मीडिया कहेगी, खाता ना वही, मीडिया जो कहे वही सही। तो ये जिहालत, ये मूर्खता, ये ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं, ये दिन भी खत्म होने वाले। देखिए, एक केस हुआ और पूरे मीडिया के अंदर मरकज निजामुद्दीन का नाम चल रहा है उस केस को लेकर के, भाई इतने सारे लोग यहाँ क्यों जमा थे। पहले तो मैं उसको बता देता हूँ आपको कि वहाँ पे क्या हुआ और क्या नहीं था। सबसे पहले तो वहाँ कोई पॉजिटिव केस नहीं पाया गया है अभी तक। आप वहाँ के डॉक्टर से सुन सकते हैं, एक भी पॉजिटिव केस नहीं। मेरे पास आज की डेट में ऑफिशियली ना RMLC, जहाँ जहाँ हमारे पेशेंट गए हैं, कोई रिपोर्ट नहीं पॉजिटिव की आई है। इस सस्पेक्टेड में तो हम भी सस्पेक्टेड हो सकते हैं, कोई भी सस्पेक्टेड हो सकता है। किसी को खांसी आ रही है, हमारी ओपीडी में पेशेंट आते हैं, वही सस्पेक्टेड हो जाते हैं, हम भी उनको भेज देते हैं। तो अभी तक हमारे पास। अब अगली बात हम करते हैं कि वहां इतने सारे लोग क्यों जमा थे और ये गैर जिम्मेदाराना काम क्यों किया, कोई प्रोग्राम क्यों रखा गया। पहली बात, भारत सरकार तो व्यस्त थी, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की एक बनी बनाई सरकार को गिराने के अंदर, इसलिए वो कोरोना का लॉकडाउन कहीं अनाउंस भी नहीं कर रहे थे। PTI ने खबर जारी की थी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से कि कोई कोरोना का संकट नहीं है। 13 मार्च को, 20 मार्च और उससे पहले भाजपा के मध्य प्रदेश में लोग किस तरह से जमा हुए थे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए। इस सब को इसलिए ताकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन सके। जब सरकार बन गई उसी दिन शाम में लॉकडाउन घोषित कर दिया प्रधानमंत्री जी ने। निजामुद्दीन मरकज धर्मशाला की तरह है, वहाँ लोग आते हैं चले जाते हैं, लोग आते हैं वहाँ से अगला अपने घर की तरफ जाते हैं, जमातें वापस आती हैं। हर रोज़ 1500 से 2000 लोगों का फुटफॉल होता है। जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ, जब कोरोना का संकट को क्लियर किया कि हाँ बीमारी मध्य भारत के अंदर है और लॉकडाउन घोषित कर दिया प्रधानमंत्री ने, जो जहां है वहीं रह जाए, ऐसा गैर जिम्मेदाराना बिना किसी तैयारी के लॉकडाउन घोषित किया। गलती किसकी? मोदी सरकार की। उसके बाद मरकज निजामुद्दीन की कमेटी ने जिम्मेदारी से SHO को इन्फॉर्म किया कि हमारे यहाँ पे फॉरेन नेशनल्स भी हैं, भारत के नागरिक भी हैं, सब लोग हैं, दूसरे स्टेट्स के भी लोग हैं। 1500 लोगों को हम उनके घर भेज चुके हैं। 1000 लोग अभी भी यहाँ फंसे होंगे, जिसमें वॉलंटियर्स भी जो यहाँ काम करते हैं वो भी मौजूद हैं। आप इसको निकालने के लिए मदद कीजिए। ये लेटर मौजूद है वहाँ पर, जिसकी रिसीविंग दी है SHO ने। SHO ने क्या कहा कि अभी आप रुकिए, अभी आप यहीं रखिए, हम कुछ करते हैं। मरकज निजामुद्दीन कमेटी ने यह कहा हमें गाड़ियों के पासेस दे दिए ताकि हम निकाल सकें यहाँ से लोगों को, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया है लॉकडाउन की वजह से। पर SHO साहब, पुलिस, दिल्ली पुलिस ने कुछ नहीं एक्शन लिया। उसके बाद मरकज कमेटी ने किसको लिखा? एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस को, दिल्ली के, कि हमें पासेस दीजिए ताकि हम लोगों को भेज सकें। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस की रिसीविंग मौजूद है, पर उन्होंने भी कुछ नहीं किया। उसके बाद SDM को लिखा कि SDM साहब पासेस दिलवाइए हमको ताकि हम लोगों को भेज सके, पर SDM साहब ने भी कुछ नहीं किया। कहा DM के यहाँ आ जाओ। DM ने क्या कहा? DM ने कहा कि हम पासेस अभी देते हैं, आपको टालते रहा। DM SDM किसके अंडर में आते हैं? केजरीवाल सरकार के अंडर में आते हैं। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस SHO किसके अंडर में आते हैं? मोदी सरकार के अंडर में आते हैं। इनकी नाकामी के ऊपर जिम्मेदार ठहराया जा रहा है मरकज को, जो निरंतर मेहनत करे जा रही थी कमेटी वहां की लोगों को निकालने के लिए, और सरकार के आदेशों का पालन करते हुए किसी को बाहर नहीं घूमने दिया, किसी को इधर उधर नहीं जाने दिया। वहीं पर रोक के रखा गया कि यहां से मत निकलिए, हमारी SHO से बात चल रही है, हमारी DM से बात चल रही है, आपको अपने घर पहुंचाएंगे। उसके बाद वहां एक भी कोरोना का केस पॉजिटिव अभी तक नहीं हुआ। अगर होते इतने केसेस पॉजिटिव 200-250 तो दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती ये तरीका है, लेकिन दिल्ली पुलिस ऑफिशियल चीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है, इसलिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ। बल्कि मीडिया इतने संदिग्ध पाए गए, कोई कह रहा है 50, कोई कह रहा है 60, कोई कह रहा है 250, कोई कंफर्म पॉजिटिव केस नहीं लिख रहा है, क्योंकि वो इलीगल हो जाएगा। सिर्फ जनता के मन में ये बताना कि यहाँ केसेस है, सिम्टम्स मुझे भी हो सकते हैं, नजर जुकाम मुझे होगा तो मुझे आइसोलेट किया जाएगा, वहां भी कोई केस नहीं है। पर मीडिया कंटिन्यूस मीडिया ट्रायल में लगा हुआ कि पूरे देश में यहीं से फैलाओ। ये बहुत अफसोस की बात है। दूसरी बात,
اگر آج آپ دیکھیں یہاں پہ تو کس لیے کیا گیا یہ؟ کیونکہ 1.5 لاکھ مزدور جو یو پی اور دلی کی بارڈر میں پھنسے، ان کی بھیابہ تصویریں، کیجریوال سرکار کی ناکامی، یوگی سرکار کی ناکامی، مودی سرکار کی ناکامی، اور لوگوں کا ان کو گالیاں دینا شروع ہو گیا تھا، کہیں سینیٹائزر سے دھلا دیا، نہلا دیا، اتنے جلادوں والا ایٹیٹیوڈ، اس کو چھپانے کے لیے، ان بھیابہ تصویروں کو ہٹانے کے لیے یہ سب چیزیں کی گئیں جس سے کہ دھیان مڑ سکے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بیماری کو ہندو مسلم کا نام دے رہے ہیں، اور آپ صرف اس لیے خاموش بیٹھے ہیں کہ آواز اٹھائیں گے تو کمیونل ہو جائیں گے۔ ارے ایسے کمیونزم کے اوپر اگر آپ فکر کرنے لگے تو بھارت کا کیا ہوگا؟ اس وقت ایک بھارت کا ناگرک بن کے سوچئے اور حق کے ساتھ آواز اٹھائیے کہ جو حق ہے اس کو بولیے اور سچ بولیے۔ یہ صرف اور صرف اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے کیجریوال اور اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے مودی جی کی سرکار اس طرح کا شڑینتر رچ رہی ہے، اور وہاں کوئی پازیٹو نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، غلط کون ہے؟ جن کی ڈیوٹی تھی لوگوں کو نکالنا، یا غلط وہ ہیں جو بار بار لکھ رہے تھے کہ ہمیں نکلوانے کے لیے پاسز دیجئے؟ اب سوچئے گا ضرور۔ جے ہند، جے بھارت۔ صدائے حق نیوز، حق و صداقت کی بے باک آواز۔ اپنے نام، کام، بزنس، پولیٹکس، پرچار، مبارکبادی یا کسی بھی طرح کے وگیاپن اور اشتہار کے لیے ہمارے چینل صدائے حق نیوز سے سمپرک کریں۔ 70 17 61 31 90 7017613190